हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 3 स्कॉटलैंड में और हम लोग हैं अभी ग्लासगो में और आज जा रहे हैं एडिनबर्ग। ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुंच गए हैं ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट स्टेशन। ग्लासगो से अराउंड 45 to 50 मिनट्स ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं एडिनबर्ग। एडिनबर्ग स्टेशन से निकलने के बाद ये रहा द अमेजिंग व्यू ऑफ द सिटी। ये ब्यूटीफुल सिटी के अंदर 10 मिनट वॉक करने के बाद हम पहुंच गए हैं रॉयल माइल। और रॉयल माइल में ये रहा आदम स्मिथ का स्टैच्यू, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये रहा रॉयल माइल का द ब्यूटीफुल व्यू। चलिए आगे चलते हैं। रॉयल माइल से अराउंड 7 to 8 मिनट्स वॉक के बाद अभी हम पहुंचने वाले हैं एडिनबर्ग कैसल। From Edinburgh station to Royal Mile and then towards the castle is pretty much accessible by walk. तो अभी हम पहुंच गए हैं वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट कैसल ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि है एडिनबर्ग कैसल। You need to book the ticket to enter into the castle and yes, we had booked it online. And also while booking the ticket you need to mention the time slot at which time slot you want to enter. तो चलिए अभी कैसल के अंदर चलते हैं। The view of the castle and the view from the castle both are amazing. All over the castle these big cannons were placed and these were to protect the castle from the enemies. And I think this must be pretty easy to protect the castle from this height with the help of these cannons. And look at this. This is called Monsmeg, which is the largest gun ever to be fired in the UK. And this is the way to the National War Museum of Scotland. और ये रहा स्कॉटिश नेशनल वॉर मेमोरियल। There is a huge hall inside which has memorial of the soldiers and filming is not allowed inside that. And now this is St. Margis Chapel, which is the oldest building in the castle. There is one 1 o'clock gun which is still fired every day at 1 p.m. except on Sundays, Good Fridays and Christmas Day. And it is fired every single day at 1 p.m. since 1861. And this hall is called the Great Hall. This is a magnificent hall built in 1511. After the Great Hall, this is Prisons of War exhibition. Pirates and pirates were held here over the years.
This place is called the Crown Square, the main square for the Great Hall, Royal Palace and the War Memorial. After 2 to 2.5 hours castle tour, now it's time to explore some other places of Edinburgh. After walking for few minutes from the castle, we have reached near the National Museum of Scotland. It is a superb museum where one can explore the diversity of the natural world cultures, art and design, science and technology, and Scottish history, all in one amazing building. This is Dolly, the first ever cloned sheep. After spending a good amount of time inside the National Museum of Scotland, now it's time to explore some other places. म्यूजियम से निकलने के बाद अराउंड 5 to 7 मिनट्स वॉक हमने किया ये अमेजिंग व्यू के साथ, और वॉक करते करते पहुंच गए ये ब्यूटीफुल सी गार्डन। ये गार्डन वो कैसल जो सुबह हम गए थे ना, उस कैसल के एकदम नीचे ही है। ये देखिए, ये रहा एडिनबरा कैसल और इसके नीचे ये बड़ा सा गार्डन है जो कि बहुत ही सुंदर है। तो एडिनबरा से वापस जाने से पहले चलिए इस गार्डन के अंदर कुछ देर चिल करते हैं। ये ब्यूटीफुल और काम एंड क्वाइट गार्डन में कुछ देर स्पेंड करने के बाद अब टाइम हो गया है वापस जाने के लिए।
तो एडिनबरा से अराउंड 50 मिनट्स अगेन ट्रेन जर्नी करके हम पहुंच गए ग्लासगो और हो गया है हमारा डे एंड यहीं पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज डे 4 इन स्कॉटलैंड। आज तो ग्लासगो घूमेंगे और उसके बाद लंदन वापस भी जाएंगे। हो गया है नेक्स्ट डे और आज हमारा स्कॉटलैंड ट्रिप का लास्ट डे है। होटल से अराउंड 10 से 12 मिनट बस में ट्रैवल करने के बाद हमें वॉक करना पड़ा 5 मिनट और उसके बाद हम पहुंच गए ग्लासगो साइंस सेंटर। और ये है ग्लासगो साइंस सेंटर के बाहर का अमेजिंग व्यू। साइंस सेंटर के अंदर एंटर करने से पहले चलिए कुछ अच्छे से फोटोज क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। और ये रहा ग्लासगो साइंस सेंटर का एंट्रेंस। There is a bunch of stuff to see and do here. There are hundreds of interactive exhibits in this science mall. There is a planetarium also. यहाँ पे हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ देखने और सीखने के लिए है। यहाँ पे एक प्लानिटोरियम है जहाँ पे एक शो 20-25 मिनट की एक शो चलती है, उसके लिए टिकट पहले से बुक करना होता है और हमने वो टिकट पहले से ऑनलाइन बुक करके आए थे। तो चलिए वो वाला शो पहले एंजॉय कर लेते हैं। बहुत सालों बाद मैं अभी प्लानिटोरियम आई और मेरे बेटे के लिए तो ये पहली बार था, तो हम सब लोग बहुत एंजॉय किए यहाँ पे। तो ग्लासगो साइंस सेंटर एक हाईली रिकमेंडेड प्लेस है टू विजिट इफ यू आर इन एंड अराउंड स्कॉटलैंड। ग्लासगो साइंस सेंटर से निकलने के बाद हम फिर से 4-5 मिनट वॉक करने के बाद पहुंच गए रिवर साइड म्यूजियम। ग्लासगो साइंस सेंटर का टिकट तो हमने ऑनलाइन पहले से बुक कर लिया था, लेकिन ये जो रिवर साइड म्यूजियम है इसका एंट्री फ्री है। ये भी एक अमेजिंग म्यूजियम है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अराउंड 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्प्ले पर, स्टार्टिंग फ्रॉम स्केटबोर्ड्स टू लोकोमोटिव्स, पेंटिंग्स, प्रैम्स, कार्स एंड मेनी मोर। द रिवरसाइड म्यूजियम के लास्ट में यानी बैक साइड में है ये द टॉल शिप। द टॉल शिप इज एन इंडिपेंडेंट म्यूजियम which is dedicated to the preservation of this ship and the maritime history of the area. Again, entry to this ship is completely free. Neither you need to book nor you need to pay anything for this. They slept down there and the young boys slept down here because they didn't get the window. ये रहा द टॉल शिप का डेक। अब चलिए नीचे चलते हैं और नीचे वाले फ्लोर में कैसा है क्या है देखते हैं।
तो ये शिप का पूरा सारे फ्लोर्स ओपन है विजिटर्स के लिए. यू कैन गो एंड हैव अ लुक अराउंड. He was the captain of this ship. और ये रहा कैप्टन का बेड एंड बाथ एरिया. This ship is completing 125 years this year. In this 125 years of history, this ship has served as a British cargo vessel, an Italian ship of mystery, to a sail training icon. And after retirement, it has been converted to a museum. तो हो गया है हमारा ग्लासगो साइंस सेंटर और रिवरसाइड म्यूजियम का टूर खत्म. इसी के साथ हमारा स्कॉटलैंड ट्रिप भी यहीं खत्म हो रहा है. एंड नाउ वी हैव अ ट्रेन टू कैच फ्रॉम ग्लासगो टू लंदन. हमने तो ये ट्रिप में बहुत अच्छे चीजें देखी और बहुत मजा आया हमें. आई होप आपको भी अच्छा लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.